Dear students, today we will study about perpendicular distance from a point to a line. Distance of the line x minus alpha upon a, y minus beta upon b is equal to z minus gamma upon c is equal to r. ये हमने सपोज कर लिया लेट फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 z1. Distance of the line x minus alpha upon a is equal to y minus beta upon b is equal to z minus gamma upon c is equal to r. सपोज किया हमने कि it is equal to distance r पर from the point x1 y1 z1. x1 y1 z1 से straight line x minus alpha upon a is equal to y minus beta upon b is equal to z minus gamma upon c की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ये सपोज ये पॉइंट P x1 y1 z1 हो गया हमारा एंड इट इज द स्ट्रेट लाइन AC which is represented by x minus alpha upon a, y minus beta upon b is equal to z minus gamma upon c. When we draw a perpendicular from point P to line AC, its foot will be B, a point at their perpendicular intersect line, where we draw perpendicular from point P to line AC. Then surely it is clear that perpendicular PB intersect line AC at point B. We know that we can find out a variable value of point on line AC since we have given that formula of straight line. चूंकि हमारे पास straight line का एक इक्वेशन दिया हुआ है और इक्वेशन जब दिया हुआ है तो हम इक्वेशन से अच्छी तरह से जानते हैं जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, उससे हम स्ट्रेट लाइन पर एक वेरिएबल पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि अल्फा बीटा गैमा से r डिस्टेंस पे होगा. और r के लिए r अल्फा बीटा गैमा पॉइंट से कोई भी डिस्टेंस हो सकती है, उसके लिए हर डिस्टेंस के लिए r की डिफरेंट वैल्यूज के लिए वो डिफरेंट पॉइंट को सेटिस्फाइड करता है. तो सपोज वी फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. To get r, this value, distance is taken r, then we get x is equal to ar plus alpha, y is equal to br plus beta, and z is equal to cr plus gamma. Now suppose the coordinates of b ar plus alpha, br plus beta, and cr plus gamma for any particular value of r. Now we suppose foot of perpendicular of b, coordinates of foot of perpendicular b is ar plus alpha, br plus beta, and cr plus gamma. Then since direct coordinates of p is known by us x1 y1 z1 and coordinates of b, coordinates of foot ar plus alpha, br plus beta, cr plus gamma, and we also know that the direction ratios of line AC is ABC. Since line AC is perpendicular to line PB, then it fulfills the condition of perpendicularity. It means a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0. Now we can find out their direction ratios of PB. Direction ratios of PB because we know that coordinates of P and coordinates of P. हम अच्छी तरह से जानते हैं कि चूंकि लाइन AB के डायरेक्शन रेशियोस ABC है और ये जो AC पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है उस पर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है और b के कोऑर्डिनेट्स ar प्लस अल्फा प्लस br प्लस बीटा एंड cr प्लस गैमा है, तो हम pb का डायरेक्शन रेशियोस निकाल सकते हैं. और यदि हम pb का डायरेक्शन रेशियोस निकाल सकते हैं
तो AC और PB परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलरिटी की अर्थात लंबवत होने की शर्त जो कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 फुलफिल करेंगे। यदि ये फुलफिल करते हैं तो हमें R की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो हमने कहा देन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PB विल बी AR प्लस अल्फा माइनस X1 BR प्लस बीटा माइनस Y1 CR प्लस गेमा माइनस Z1। These are direction ratios of PB. Since PB is perpendicular to AB की जगह मैं AC कर देता हूँ। PB is perpendicular to AC and direction ratios of AC will be ABC. So A into AR plus alpha minus X1 plus B into BR plus beta minus Y1 plus C into CR plus gamma minus Z1 is equal to 0. A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equal to 0. If two lines are perpendicular, then it fulfill the condition of perpendicularity and it is A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0. यदि दो रेखाएं पर लंबवत हैं तो निश्चित ही लंबवत होने की शर्त को पूरा करेंगी। और अब PB और AC परस्पर लंबवत रेखाएं हैं और दोनों के दिक् अनुपात डायरेक्शन कोसाइंस हमें मालूम है, तो हम इन पर लंबवत होने की शर्त A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 लागू कर सकते हैं। वही हमने लागू किया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, A स्क्वायर R B स्क्वायर R प्लस C स्क्वायर R। फर्स्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करके एक ब्रैकेट में लिख लिया। सेकेंड टर्म A अल्फा प्लस B बीटा प्लस C गैमा, उसको सेकेंड ब्रैकेट में लिख लिया। और थर्ड ब्रैकेट में लिखा माइनस AX1 माइनस BY1 माइनस CZ1, माइनस कॉमन ले लिया इसलिए अंदर क्या आ गया, AX1 प्लस BY1 प्लस CZ1 इज इक्वल टू 0। वी वांट टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ R, सो वी ट्रांसपोज रिमेनिंग वैल्यूज एक्सेप्ट R take out common R, we get R into A square plus B square plus C square is equal to AX1 plus BY1 plus CZ1 minus A alpha plus B beta plus C gamma is that R is equal to AX1 plus BY1 plus CZ1 को हमने A कॉमन ले लिया, A into X1 minus alpha plus B1 B into Y1 minus beta plus C into Z1 माइनस गैमा अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यदि कोई हमें इक्वेशन दिया है तो R डिस्टेंस कितनी होगी उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, R इज इक्वल टू A इंटू X1, यहाँ X1 Y1 Z1 का मल्टीप्लाई कर दें, X1 Y1 Z1 से रिप्लेस कर दें और ABC का हम इस पे मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे कर दें, इसको इससे कर दें और XYZ को X1 Y1 Z1 से रिप्लेस कर दें और उसमें डिवाइड किससे कर दें, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर। तो हमें R की वैल्यू मिल जाएगी और जब R की वैल्यू मिल जाएगी तो वी फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, AR प्लस अल्फा BR प्लस बीटा CR प्लस गामा। R की वैल्यू रख देंगे तो हमें किसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, एक्यूरेट कोऑर्डिनेट B के मिल जाएंगे। और जब B के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P एंड B, X1 Y1 Z1 and this point B, we can find out distance of distance of the line PB. If we want to find out equation of PB, यदि क्वेश्चन कहता है कि आपको सिर्फ डिस्टेंस नहीं प्राप्त करना, दोनों P और B के लंबवत दूरी नहीं प्राप्त करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्राप्त नहीं करना बल्कि फुट के कोऑर्डिनेट्स प्राप्त करना, तो फुट के कोऑर्डिनेट्स तो हम ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं। अब लंबवत दूरी के लिए हम क्या कर रहे हैं, P और B के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो PB के बीच का डिस्टेंस निकालिए। और थर्ड क्वेश्चन इसी में बनता है कि फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ PB, परपेंडिकुलर का इक्वेशन फाइंड आउट करो। तो वी नो दैट टू फाइंड आउट एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वी रिक्वायर टू थिंग्स ओनली, ए पॉइंट which passes through this line and second direction ratios of that particular line। किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हासिल करने के लिए हमें दो चीजें अपेक्षित होती हैं, एक
वो जिस पॉइंट से होकर गुजरती है, पासेस होती है, और दूसरा उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। और यदि उस पर दो कोऑर्डिनेट्स के डायरेक्ट माने हमें प्राप्त है, उस लाइन पर स्थित 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, तो हम डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। वो क्या होंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो यहां हम पीबी का इक्वेशन भी नोट कर सकते हैं, x माइनस x1 अपान ए आर प्लस अल्फा माइनस x1, आर की वैल्यू हम निकाल चुके होंगे, इज इक्वल टू y माइनस y1 अपान बी आर प्लस बीटा माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपान सी आर प्लस गेमा माइनस z1। तो आर की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यही चीज यहां पर हमने दी है, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर वी गेट फुट बी अ परपेंडिकुलर ए बी, then using distance formula we can find out length of perpendicular drawn from point x1 y1 z1 to x minus alpha upon a y minus beta upon b is equal to z minus gamma upon c. This is first method to find out perpendicular distance from any point x1 y1 z1 to any line x minus alpha upon a y minus beta upon b and is equal to z minus gamma upon c. अल्टरनेटिव मेथड इसकी एक और मेथड है, आप इसको भी यूज कर सकते हो, इसको भी चाहो तो यूज कर सकते हो। अगेन सिंस ए बी इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए पी, अगेन सिंस ए बी इज द प्रोजेक्ट, ए बी यदि ध्यान से देखो तो प्रोजेक्शन की डेफिनेशन याद होगी, तो किसी पॉइंट से ए बी इज द प्रोजेक्शन ऑफ, ए बी इज द प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन AP ऑन AC, देन किसी पॉइंट से होकर जाने वाली, किसी 2 पॉइंट से होकर जाने वाली स्ट्रेट लाइन का किसी अन्य लाइन पर जिसके डायरेक्शन कोसाइंस LMN हो पर प्रोजेक्शन होता है x1 माइनस अल्फा इंटू एल, y1 माइनस बीटा इंटू एम प्लस z1 माइनस गेमा इंटू एन। किन्हीं दो बिंदुओं 2 पॉइंट्स x1 y1 z1 और x2 y2 z2 से होकर जाने वाले लाइन सेगमेंट का किसी अन्य लाइन जिसके डायरेक्शन कोसाइंस LMN हो पर खींचा गया प्रोजेक्शन या लिया गया प्रोजेक्शन हमेशा क्या होता है, x2 माइनस x1 इंटू एल प्लस y2 माइनस y1 इंटू एन प्लस z2 माइनस z1 इंटू एन, या x2 माइनस x1 इंटू कॉस अल्फा प्लस y2 माइनस y1 इंटू कॉस बीटा प्लस z2 माइनस z1 अपान इंटू कॉस गेमा। ये हम पहले ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं ये फार्मूला, तो हमने यहां पर अप्लाई कर दिया। हमारे 2 पॉइंट्स थे x1 माइनस अल्फा इंटू एल, y1 माइनस बीटा इंटू एन एंड z1 माइनस गेमा इंटू एन, वेयर LMN आर DCS ऑफ AB। जैसे ही हमें AB मिलेगा, यदि हमें AB मिल गया और AP हम निकाल सकते हैं, क्यों, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 y1 z1 अल्फा बीटा गामा। अब ये क्या है, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो क्या हो जाएगा, PB इज परपेंडिकुलर, तो PB स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट PB स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर माइनस EB स्क्वायर। वी नो दैट द लेंथ ऑफ AB, सो वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ PB। लेकिन यहां पर इस मेथड का यूज करने पे हमें फुट के परपेंडिकुलर जो है, फुट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो नहीं मिलेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। तो ये मेथड यूज करोगे, तीनों क्वेश्चन पूछता है तो इस मेथड को यूज करो, और सिंगल से डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट x1 y1 z1 टू एनी स्ट्रेट लाइन x माइनस अल्फा अपॉन a प्लस y माइनस इज इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन c। तो उस कंडीशन में इस अल्टरनेटिव मेथड का यूज करेंगे। ये तो रहा लेंथ ऑफ डिस्टेंस ऑफ और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी स्ट्रेट लाइन। सेकंड है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन ए प्लेन ax plus by plus cz plus d इक्वल टू 0 फ्रॉम x1 y1 z1। ये स्ट्रेट लाइन पर किसी पॉइंट से ड्रा किए गए परपेंडिकुलर को निकालने की मेथड थी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी पॉइंट से प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए, किसी पॉइंट
पी एक्स वन वाई वन जेड वन से किसी प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर व्हाट विल बी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। पहली चीज कि लेंथ, जो प्लेन का यूनिट क्या होता है, प्लेन का यूनिट होता है नॉर्मल। यदि हमें प्लेन का इक्वेशन दिया है तो उसमें ए एक्स वाई और जेड के कोऑर्डिनेट्स डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन को शो करते हैं। कि जब भी हमें यदि प्लेन का इक्वेशन दिया तो हमारे दिमाग में अच्छे से रहता है कि जो प्लेन का इक्वेशन है उसमें एक्स वाई और जेड के कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के साथ जो कांस्टेंट है वो उस प्लेन के लंब के डायरेक्शन रेशोज हैं, जो किसी माने कांस्टेंट वैल्यूज विथ एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स shows the direction ratios of normal of that perpendicular of that plane of that given plane। तो ये ABC हमें दिया हुआ है और ये किसी पॉइंट P x1 y1 z1 से ड्रा करना है। पॉइंट P x1 y1 z1 से हमें प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हासिल करनी। अब चूंकि इसके नॉर्मल के इसका इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, तो इसमें ए बी सी क्या हो गए, ए बी सी एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स उसके उस प्लेन की नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज। ये ए बी क्या है, प्लेन का नॉर्मल है और प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज ए बी सी हैं। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि किन्हीं भी टू पैरेलल लाइंस के डायरेक्शन रेशोज सेम होते हैं। डायरेक्शन रेशोज ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर प्रोपोर्शनल आर सेम। डायरेक्शन रेशोज ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल आर सेम, देन ABC will be direction ratios of PQ which drawn from which perpendicular or which normal which perpendicular drawn from point x1 y1 z1 to plane, its direction ratios will be ABC, and it is drawn from, it passes through a point x1 y1 z1, then we can find out the equation of PQ because we have both things, one point which passes through straight line and second direction ratios of a straight line. Then we can write the equation of straight line. It will be x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c। तो ये हो गया हमारा किसका इक्वेशन, उस स्ट्रेट लाइन का जो x1 y1 z1 से होकर जाती है एवं प्लेन पर परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो हम इसके लिए जब भी प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, यही किया है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ए बी एंड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी x1 y1 z1 विल बी x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c is equal to k। its distance को हमने k सपोज किया, then we get a variable point for infinite values of k। we get a variable point for infinite values of k, the value of x will be ak plus x1, y is equal to bk plus y1 and z is equal to ck plus z1। अर्थात हमें स्ट्रेट लाइन पे क्या होता है, एक वेरिएबल पॉइंट मिलता है जो के इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए उस स्ट्रेट लाइन के समस्त पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता है। और जो पॉइंट वेरिएबल है उसे हम क्या मान लेते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। किसका, कोऑर्डिनेट्स के का, क्यू का। सपोज देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट आर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ प्लेन एंड ए स्ट्रेट लाइन विल बी ak प्लस x1 bk प्लस y1 ck प्लस z1। चूंकि q स्ट्रेट लाइन पर भी है और प्लेन पर भी है तो ये प्लेन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और स्ट्रेट लाइन की। तो चूंकि प्लेन का इक्वेशन हमें मालूम है तो हम ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे,
प्लेन के इक्वेशन है जिससे हमें के की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो a इंटू ए के प्लस x1 प्लस बी इंटू बी के प्लस y1 प्लस सी इंटू सी के प्लस z1 प्लस d इज इक्वल टू 0। देन वी गेट k इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ax1 plus by1 plus cz1 plus d is equal to 0. Then we get value of k is equal to minus ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon a square plus b square plus c square। माने हम यदि हमें x1 y1 z1 दे दे तो हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। k की वैल्यू निकालने पे हम सीधा सा कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट निकाल सकते हैं, और जैसे ही q का हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा तो अच्छी तरह से जानते हो कि 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या होती है। हम उससे डिस्टेंस फार्मूला से हम क्या निकाल देंगे, डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम x1 y1 z1 टू ए प्लेन। ये तो 2 टॉपिक्स हुए जो एक्सरसाइज हम पढ़ने वाले हैं, उसके 2 टॉपिक्स हुए। थर्ड टॉपिक से इमेज ऑन स्ट्रेट लाइन एंड इमेज ऑन प्लेन। अब इमेज ऑन स्ट्रेट लाइन एंड इमेज ऑन प्लेन जो है उसको यदि ध्यान से देखो, इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब। इमेज का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब। और इमेज जो आपको फाइंड आउट करना है किस पर, किसी पॉइंट की इमेज स्ट्रेट लाइन पर और किसी पॉइंट की इमेज किस पर, प्लेन पर। यदि हम प्लेन ले लें तो ये हमारा प्लेन हो गया, ये प्लेन हो गया, ये पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है तो, और ये प्लेन है। जब हम इससे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें हम, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट O ले लें हम और Q, सेम डिस्टेंस पर। इमेज का मतलब है जब हम दर्पण में प्रतिबिंब देखते हैं, मिरर में इमेज देखते हैं तो क्या होता है, जितनी दूरी पर हम खड़े होते हैं ठीक उतनी दूरी पर ही इमेज बनती है। और सेंटर में कौन होता है, मिरर। सेंटर में कौन होता है, मिरर। तो यदि हम P से पॉइंट दिया हुआ है, P की इमेज फाइंड आउट करने बोलता है x1 y1 z1, और ये जो हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे वो परपेंडिकुलर हमेशा प्लेन के नॉर्मल, प्लेन के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं, प्लेन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये प्लेन के नॉर्मल के क्या होगा, पैरेलल होगा। यदि इसका प्लेन का इक्वेशन हम a x b y प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 ले लें तो इसके DRS क्या हो जाएंगे, ए बी सी। इस नॉर्मल के नॉर्मल ऑफ प्लेन, DRS ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन विल बी ए बी सी। और यदि ये ए बी सी है, ये x1 y1 z1 है, तो इस पर डालेगा एक परपेंडिकुलर, इस पर पीओ का स्ट्रेट, पीओ एक स्ट्रेट लाइन है, ड्रा परपेंडिकुलर, ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू x1 y1 z1 and its direction ratios are a b c। then equation of parallel line, equation of straight line will be x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c। now suppose it is equal to r। हम हर समय यूज स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल रहा है तो इसलिए करते हैं कि हमें एक वेरिएबल पॉइंट मिल गया, तो ये क्या मिल गया, x इक्वल टू ए आर प्लस x1, y इज इक्वल टू बी आर प्लस y1 एंड z इक्वल टू सी आर प्लस z1। this variable point xy shows all points of pq at particular value of r। चूंकि ये जो स्ट्रेट लाइन का वेरिएबल पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन की सारे पॉइंट्स को, सिंस लाइन इज द सेट ऑफ पॉइंट्स, तो ये PQ पर स्थित सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को r की किसी वैल्यू के लिए शो कर देगी कि r की वैल्यू यदि हम चेंज करते जाएं तो हमें इस लाइन पर स्थित प्रत्येक पॉइंट मिल जाएगा। नाउ हम सपोज करते हैं, सपोज ए आर प्लस x1, बी आर प्लस y1 एंड जेड आर प्लस सी आर प्लस z1,
is the intersecting point of plane and straight line PQ. AR plus X1, PR plus Y1, CR plus Z1 is the intersecting point. Intersecting point of plane and line. Then अब 100% है कि we know that the intersecting point lies both on straight line and plane. When it lies on plane, then it satisfies the equation of plane. What is the equation of plane? The equation of plane is ax plus by plus cz plus d equal to 0. Then this point is intersecting point, then and this point lies on plane, then this satisfies this equation, and we get now x, y, z is replaced by this point. We get AR plus x1 plus BR plus y1 plus CR plus z1 plus d. Now simplify it. A square R plus B square R plus C square R plus AX1 plus BY1 plus CZ1 plus D. Now we can find out value of R. A square plus B square plus C square is equal to minus AX1 plus BY1 plus CZ1 plus D. So value of R will be minus AX1 plus BY1 plus CZ1 plus D upon A square plus B square plus C square. इसका मतलब है कि जब हम P से जाने वाली स्ट्रेट लाइन और P से Px1 y1 z1 से होकर जाने वाली पास होने वाली स्ट्रेट लाइन और प्लेन के नॉर्मल के पैरेलल Px1 y1 z1 से पास होने वाली तथा प्लेन के नॉर्मल के पैरेलल अर्थात ABC डायरेक्शन रेस वाली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालते हैं। तो इक्वेशन से हमें क्या मिल जाता है? एक वेरिएबल पॉइंट दैट विल बी इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जो कि स्ट्रेट लाइन और प्लेन का इंटरसेक्टिंग प्रतिच्छेदी बिंदु होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। अब चूंकि प्रतिच्छेदी बिंदु जो है वो स्ट्रेट लाइन पर भी है और प्लेन पर भी है, और हमारे पास प्लेन का इक्वेशन है, तो ये प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा जैसा यहाँ कर रहा है। और जब प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? आर की वैल्यू। कि आर की किस वैल्यू के लिए ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा? तो ये हमें मिला कि आर की इस वैल्यू के लिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला। जैसे ही आर की वैल्यू मिलती है हमें एक्स वाई जेड मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ ओ मिल जाएंगे। अर्थात अब हमें 2 पॉइंट से कि जिसकी इमेज फाइंड आउट करना है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से, सेंटर पॉइंट के मिरर कहाँ होता है? सेंटर में। तो हम सपोज कर लेंगे लेट इमेज ऑफ P इज एक्स वाई जेड, देन x प्लस x1 अपॉन 2, इसको हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड। कोऑर्डिनेट ऑफ O इज एक्स वाई जेड, देन x प्लस, इसको मैं मान लेता हूँ x2 y2 z2, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ O जो हमने निकाला है वो क्या निकले? एक्स वाई जेड। देन x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 अपॉन 2 is equal to x implies that x2 will be x2 is equal to 2x minus x1, x2 equal to 2x minus x1। इसी प्रकार से y2 equal to 2y minus y1 and z2 equal to 2z minus z1, जहाँ x2 y2 z2
x2 y2 z2 क्या हो जाएंगे, पी x1 y1 z1 की प्लेन में इमेज, x2 y2 z2 विल बी द इमेज ऑफ पॉइंट पी x1 y1 z1 ऑन गिवन प्लेन। तो ये एक भी रहा। अब इसी में एक क्वेश्चन और बनता है, किस तरह से सॉल्व करोगे इसको, ये भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट बनता है हमारे पास कि यदि कोई स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर इमेज क्या होगी, कि वी हैव गिवन दैट एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड ए पॉइंट, क्वेश्चन सेज फाइंड आउट image of x1 y1 z1 to any line p की इमेज x माइनस अल्फा अपान a इज इक्वल टू y माइनस बीटा अपान b इज इक्वल टू z माइनस गैमा अपान c। फाइंड आउट इमेज ऑफ x1 y1 z1 on straight line with respect to straight line x minus alpha upon a is equal to y minus beta upon b is equal to z minus gamma upon c। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी इस पॉइंट की इमेज का सेंस हर जगह वही रहेगा। इमेज का सेंस है कि जिसके रिस्पेक्ट में इमेज मांगी जा रही है उससे ठीक उतनी ही डिस्टेंस पे सेकंड साइड पे जो पॉइंट है वो उसकी इमेज जाएगी। मान लो यहाँ से पी सेंटर पॉइंट वो है, पी से ओ यदि r डिस्टेंस पर है तो O से r डिस्टेंस पर, सेकंड साइड O से r डिस्टेंस पर जो अन्य पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स कर लेंगे इमेज ऑफ P, चाहे वो प्लेन में हो या स्ट्रेट लाइन में हो। अब प्लेन में तो हमने निकाल लिया, स्ट्रेट लाइन में कैसे निकालेंगे, तो स्ट्रेट लाइन में P x1 y1 z1 P x1 y1 z1 से होकर जाने वाली और इस स्ट्रेट लाइन पर परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो ये लाइन ओ इंटरसेक्ट तो कर रहा है, पी क्यू 100% जिसकी इमेज निकाल रहे हैं उससे होकर जाने वाली, दोनों को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन है, पॉइंट और उसकी इमेज, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। वो स्ट्रेट लाइन इस स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, वो भी परपेंडिकुलरली। और यदि परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रही है तो ऐसी कंडीशन में एक इंटरसेक्टेड पॉइंट यहाँ होता है। हम इसको यहाँ पर r सपोज कर रहे हैं, इज इक्वल टू r, देन वी गेट ए वेरिएबल पॉइंट ए आर प्लस अल्फा, y इज इक्वल टू बी आर प्लस बीटा एंड z इज इक्वल टू सी आर प्लस गैमा। ये तो हमें वेरिएबल पॉइंट मिल गया जो लाइज करता लाइन के ऊपर। एक्स वाई जेड को हम सपोज कर लेते हैं कि ए आर प्लस अल्फा, बी आर प्लस बीटा एंड सी आर प्लस गैमा इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन पी क्यू, ऑफ स्ट्रेट लाइन पी क्यू एंड गिवन स्ट्रेट लाइन। then what will be value of r। अब हम p x1 y1 z1 से जाने वाली स्ट्रेट लाइन ले लें तो क्या होगा कि x माइनस x1 अपान a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपान b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपान c1। तो जो इस स्ट्रेट लाइन का हमें क्या मिली, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से यदि हम क्या निकाल लें, डी आर एस, ये भी निकालने की जरूरत नहीं है। यदि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं, किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ, देन डी आर एस ऑफ पी क्यू विल बी, if the coordinates of O is AR plus alpha, BR plus beta plus, sorry, BR plus beta, comma CR plus gamma, then what will be DRS of PQ? तो
ए आर प्लस अल्फा या x1 माइनस, चलो दो में से किसी में से भी सब्ट्रैक्ट कर दो, ए आर प्लस अल्फा माइनस x1, बी आर प्लस बीटा माइनस y1 एंड सी आर प्लस gamma minus z1. It will be direction ratios of PQ and direction ratios of given straight line is ABC. Since both lines are perpendicular, since image line and given straight line both are perpendicular, then they satisfy the condition of perpendicularity. अब and it will be a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0. मैं सीधा सीधा से कह रहा हूं कि एक पॉइंट P है x1 y1 z1 जिसकी हमें गिवन स्ट्रेट लाइन x माइनस अल्फा अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस गेमा अपॉन c में इमेज निकालना है. इमेज का मतलब हम जानते हैं ठीक उतनी ही डिस्टेंस पर स्ट्रेट लाइन के ठीक उतनी ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर सेकंड साइड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स. अब हम क्या करते हैं कि भाई हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है तो जो P से होकर स्ट्रेट परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, हम P से जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन होगी. और चूंकि हमें स्ट्रेट लाइन दी है तो P की इमेज यदि Q है तो PQ को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन है वो 100% स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट करेगी. और दो में से किसी का भी इक्वेशन यदि स्ट्रेट लाइन का दिया तो हम सपोज कर देते हैं इक्वल टू आर की किसी वैल्यू के लिए हमने कहा सपोज इट विल बी इंटरसेक्टिंग पॉइंट. आर की वैल्यू के लिए हमने कहा कि एक्स वाई जेड क्या है, आर की किसी वैल्यू के लिए दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दोनों लाइंस का प्रतिच्छेदी बिंदु है. तो जो आर ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 100% इसको सेटिस्फाई करेंगे. ओ के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ओ के कोऑर्डिनेट्स मिल गए. और जब ओ के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो हमने ओपी का क्या निकाल लिया, डायरेक्शन रेशियो, जो कि किसका डायरेक्शन रेशियो होगा, पीक्यू का. हमें हर हाल में ओ के कोऑर्डिनेट निकालने हैं. तो अब हमने ये निकाला तो जब ये इसके डीआरएस मिल गया और इसके डायरेक्शन रेशियोज है एबीसी तो दोनों में लंबवत की शर्त जो है परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 अप्लाई हो जाएगी. तो हमने परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन अप्लाई कर दी, ए आर प्लस अल्फा माइनस x1 प्लस बी आर प्लस बीटा माइनस y1 प्लस सी आर प्लस गैमा माइनस z1, गैमा माइनस z1 इज इक्वल टू 0. अब ये परपेंडिकुलर की कंडीशन को सॉल्व करें तो ये आर को मैंने कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सेकेंड ब्रैकेट में आ गया ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गैमा. और थर्ड वाला जो हम करेंगे तो माइनस साइन कॉमन ले लें तो क्या मिल जाएगा, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी इज इक्वल टू 0. अब इसकी सहायता से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, आर की. और जो आर की वैल्यू आ जाएगी तो उसको हम यहाँ रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, एक्स वाई जेड अर्थात ओ के कोऑर्डिनेट्स. और चूंकि ओ इज द सेंटर ऑफ पी एंड क्यू, इफ क्यू इज द इमेज ऑफ पी देन ओ विल बी सेंटर या मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू. चूंकि हम जानते हैं कि यदि पी की इमेज को हम मान लें क्यू है तो वो जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट वो क्या है, वो पी क्यू का मिड पॉइंट. और टू कोऑर्डिनेट्स मालूम हो तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये था तुम्हारा पूरा इस चैप्टर की थ्योरी की करना क्या क्या है. हमारे 4 टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और सेकंड क्वेश्चंस मिलेंगे किस पे, कि आपको इमेज फाइंड आउट करना है. तो अब आप इसको सीधा सीधा लगाना. अब इसकी जगह पे नंबर्स दे देगा, पूरी की पूरी एक्सरसाइज F कंप्लीट हो जाएगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.